Good morning, everyone, to the second session today of the Career Oriented Diploma course organized by the Department of English and the IQAC of Sri Binzani City College. Yesterday, we saw the basics of writing skills. Mr. Mandar Morone took us through all the labyrinths of the language and how and in which way we should form a journalistic piece of writing. Today, to take it further, we have with us Advocate Harshavardhan Nimkhedkar sir to tell us something more about language acquisition or word power, or you can call it the vocabulary enhancement skill. Because without words, it is impossible for any of us to write down something and convey it to the other person. Words are primarily important. Advocate Nimkhedkar and was also a journalist for some years. He is quite passionate about languages and a stickler for rules. He is an avid reader of both Marathi as well as English books, and chief among them is the fiction of P.G. Wodehouse. Now, for students, those who don't know about P.G. Wodehouse, P.G. Wodehouse was an English author and one of the most widely read humorists of the 20th century. He is known for writing comic fiction. So, on behalf of the Department of English and the IQAC of Sri Binzani City College, I welcome Sir, I welcome all the students to this virtual platform and request Sir to start his session. Sir, please. Okay. Good morning, everybody. Namaskar. I propose to speak both in English and Marathi. So I think that would be convenient for the students. Yes, sir. To begin with, my topic is how to enhance your vocabulary or word power. To begin with, what is vocabulary? Vocabulary is the collection of words in your memory. Vocabulary is a word that comes from Latin. It means a long list of words with definitions or translations. मराठीत आपण त्याला शब्दसंग्रह म्हणतो. Now, there are three basic questions. First, what is vocabulary that I told you? Second question is, why do we need strong vocabulary? प्रत्येकाची vocabulary शब्दसंग्रह हा चांगला असला पाहिजे. आता चांगला असला पाहिजे म्हणजे काय? Why and why? का असला पाहिजे? There are two basic questions. And the third is, how do we acquire a strong vocabulary? Do we need it in real life? The answer is yes. Now, we'll go to the reason for acquiring strong word power. Having a strong word power makes you confident. It gives you self-assurance. It makes you communicate with the other people in an effective manner. You can impress them, you can convey your thoughts, what you want to say effectively and in a result-oriented fashion, And it's also, oratory is an art, An orator is a person who speaks widely on any topic and fluently. So to be able to speak fluently is an art. How do we get about it? This is the main question. Now, although we are talking about English vocabulary today, the same principle applies to any language, whether it be Marathi, Hindi, or whatever is your mother tongue, or whatever language you are comfortable with. तुम्ही त्याचे फायदे काय आहेत? What are the benefits of strong vocabulary? As I told you, it makes you confident. It helps you in
your jobs. If you go to an interview and you have poor communication skill, the interviewer is not impressed. Then there are kinds of jobs that after graduation you might go into. You might go for the MPSC exams, IAS or IFS or whatever. You may want to enter teaching profession. You may want to become a lawyer. You may want to become a scientist, or you may want to become a journalist, or you may want to become a professional writer. You might even want to write scripts for cinema or television, screenwriting. All this cannot come together, cannot be, all this cannot happen unless you have a very strong vocabulary. You know how to use words. That's most important. So don't say, I don't love words. I don't like words. First thing is, never be shy of words. You have to love words. Don't say, why should I need words? I'm a shy person. I'm not talkative. I'm not going to talk to anyone. Don't talk. But even if you are writing something, that you can express yourself in your words, written words, not necessarily oral, spoken words. Now, there are persons who are, as I said, shy of speaking. There are persons who are afraid of words. They cannot acquire language skills. So there is a word for such persons, you know, that fear of words is called logophobia. Now, I wonder if everybody of you has got a paper and pencil with you. You can. Yes, sir. We have given them instructions that today they need paper and pen. That's good. That's good. You can write down these words, some of the words that I'll tell you about today. Logophobia it's not a common word. It comes from logo means word in Greek, and phobia is fear, you know. Logophobia. Some people are, there is another word for that in English, tongue-tied. He cannot move his tongue. He cannot express himself fluently or effortlessly. So the first thing that a person, a student like you of your age, you have to learn is to get over your phobia of words, languages. You have to love words. You have to have an ear. Any word that is new to you, you should immediately prick your ears. Oh, this is new word to me. What does it mean? How is it spelled? How is it pronounced? So you write it down. All right. So that brings us to the third question of how we go about acquiring vocabulary. There are many ways of doing it. There are, of course, standard rules, but those are rules of thumb. Means there's no, everybody has a personalized agenda. It depends on the person's ability to learn. Some people are a bit slow in languages. Some people are a bit slow in maths. By slow, I mean slow. They are slow in acquiring. You know, your brain has got two hemispheres. You must have heard. The left brain, the left part of the brain controls your analytical ability. It controls your numerical power, you know, mathematics and all that. It teaches you logic. And the right part of the brain it controls your artistic emotions, your word power, your languages, creative power. So in some people, the right part of the brain is more active than the left. In some people, the left part is more active than the right. Those who have their left part is more active, they are a bit slow in learning languages. Students who go to engineering faculty or medicine faculty or pure sciences, they say, why do we need words? काम चलाओ जितना काम का है उतना हम सीखेंगे ज़्यादा का क्यों सीखेंगे that's right. But then if you are going to write a research paper for some scientific journal or some international magazine,
They also check your standards of writing. You have to be able to tell the worldwide audience about what you are telling them. What is your subject matter? So just don't say, I'm an engineer, so I don't need vocabulary. You need vocabulary. Now, we'll deal with the part of acquiring vocabulary a bit later. First, let's see how children acquire it. अब मेरी 6 साल की मेरी खुद की पोती है, मैं उसको जैसा उसका बर्थ हुआ तब से आज तक, how has she acquired the word power? I observed it fluently, carefully. The first thing she learns is to hear. She hears what her parents are talking about, how her parents talk to her. उसके siblings, brothers है, sisters है, उसके grandparents है, उसके other relatives है, maybe some people from neighborhood. वो सब बातें करते हैं उससे, तो वो she picks up those words, and then gradually that word is rooted, fixed in a memory, and then when she starts speaking, she knows how to use that word, and she expresses it perfectly grammatically. You have not taught her grammar. A girl will say me zate, a boy will say me zato. Zate, zato, मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ. This difference, they pick it up automatically. I'll give you another interesting example. मेरी cousin अमेरिका में रहती है. She has got a grandson. He is also 6 years of age. It's an interesting case study. His parents, my cousin and her husband are Marathi. They speak Marathi. So their son is a Marathi speaking person. His wife is a Punjabi Sikh. They married in America. So she speaks Punjabi, Hindi, English. My cousin's son speaks English, Hindi, Marathi. So their son, this 6-year-old boy, he knows all these 3 languages: Punjabi, Marathi, Hindi, and English, 4 languages. Another point, he has a nanny, a babysitter. She has been with their family since long. She's a Nepali girl, Nepali. And she speaks in Nepali to that boy. So he has also picked up words from Nepali. Now this 6-year-old boy is fluent in at least 5 languages, and he has that much vocabulary in his brain. And he knows when to speak which word in what language to whom. So you have to realize that picking up words is a process that automatically comes to you from your childhood. ये वर्ड सीखो ऐसा हम बच्चे को नहीं बताते, वो खुद जान जाता है कि ये वर्ड है, तुम्हारा नाम क्या है, पापा कौन है, मम्मी कौन है, आई कशाला म्हणता, आई कौन है, आईला आई का ही आई है, हाँ बाबा है. He just knows it instinctively. तो ये एक बचपन का तरीका है. Now in this process you develop primary or basic vocabulary. There are types of vocabularies. जो word power होता है ना, उसके levels है. एक ये जो मैंने बताया अभी, this is basic. डेली कॉन्वर्सेशन में घर के लोगों के साथ में या फ्रेंड्स के साथ में जो बातें करते हैं, that's basic vocabulary. Then ये पहली से चौथी तक एक्वायर करते हैं, केजी 1 से. मिडिल स्कूल में जाते हैं, we learn some more words. That's middle level vocabulary. Then there is intermediate vocabulary, and then there is advanced level vocabulary, and above that there is an expert level vocabulary. अब सबको expert level vocabulary का ऐसा है कि हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में अपने खुद के वर्ड्स होते हैं. जैसे हम लॉ कॉलेज में जाते हैं तो वी
have to learn Latin words, Latin phrases, because most of the legal theory is derived from England, and that is based on Roman law, ancient Roman law, that was all in Latin. तो ये जो लैटिन फ्रेजेस हम लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं, सो वी हैव 20 साल की उम्र में जब हम कॉलेज में जाते हैं तब भी हम वोकैबुलरी पढ़ते हैं, एक्वायर करते हैं. इफ यू गो टू इंजीनियरिंग, इफ यू गो टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वहां का वोकैबुलरी अलग है, कंप्यूटर लाइन में अलग है. यू गेट मी? मेडिसिन में जाते हैं तो अलग है, प्योर साइंसेस में जाते हैं तो अलग है, सिनेमा लाइन में जाते हैं तो अलग है. ठीक है, दिस इज अबाउट एजुकेशनल फील्ड. मोस्ट ऑफ अस इन इंडिया नो क्रिकेट फ्रॉम बर्थ. अगर आप खेलते भी नहीं है तो लोगों का सुन के या रेडियो और टीवी पे क्रिकेट की कमेंट्री सुन के या देख के वी नो द गेम ऑफ क्रिकेट. उसके जो वर्ड्स है, LBW क्या होता है, गुगली क्या होता है, दूसरा क्या होता है, यू डोंट हैव टू बी टोल्ड. अमेरिकन आदमी को जो क्रिकेट नहीं खेलता उसको गुगली या दूसरा नहीं समझेगा, बट टू एन इंडियन दूसरा का मतलब बताने की जरूरत नहीं है. अगर आप कुकरी में इंटरेस्ट रखते, कुकिंग में, संजीव कपूर के शोज आप देखते हैं टीवी पे, you know what he's talking about, sote and puree, that kind of thing. अगर आप ब्यूटिशियन है तो आप पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल, ये सब अपने अपने प्रोफेशन के, इसको जार्गन वर्ड बोलते हैं, जार्गन, प्रोफेशनल जार्गन. दिस इज अनदर वर्ड यू कैन राइट डाउन, JARGON, जार्गन. तो ये एक्सपर्ट लेवल का हो गया. Some of the things come automatically, some we have to learn. So the first thing while going about acquiring good vocabulary is to decide आपको कौन से लेवल तक जाना है. Set up your goal, set up a bar. ये मेरी मंजिल है, मुझको यहाँ तक जाना है. Am I audible? Yes, sir. Hello? Somebody had mistakenly unmuted. You're audible, sir. Please. Okay. Yes. Okay. Students, please mute yourselves. Yes, please continue. So, एक टारगेट आपको फिक्स करना है कि मुझको ये लेवल तक जाना है. हर किसी को हर कोई चीज, हर एक चीज आनी चाहिए जरूरी नहीं, नॉट नेसेसरी. नहीं हो सकता. जरा अबाउट 1.5 million, 15 लाख वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में है. कोई नहीं जानता उनको. डिक्शनरी में सिर्फ आपको मिलेंगे, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, वहां पे भी कंप्लीट नहीं मिलेंगे. एंड एवरी डे न्यू वर्ड्स आर कॉइन्ड. कोई जरूरत नहीं कि आपको इतने सब वर्ड्स आना चाहिए. एक स्टडी के मुताबिक, साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक, एवरेज पर्सन की वोकैबुलरी ऑन एन एवरेज 5000 वर्ड्स, 5000 वर्ड्स की होती है. उसके ऊपर उसको जरूरत ही नहीं पड़ती. तो फिर आप जब स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाते हैं तो आप एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज करते हैं. अब वर्ड्स के भी बहुत से टाइप्स है. कॉमन वर्ड्स, स्पेशलाइज्ड वर्ड्स, as I said. Then there are fancy words. फैंसी वर्ड यानी एक वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में किसी ने बनाया हुआ जो ऑलमोस्ट कभी यूज नहीं होता, लेकिन है वहां पे. क्यों है पता नहीं, बनाया. फैंसी वर्ड. एक मैं वर्ड आपको एक इंटरेस्टिंग वर्ड बताता हूँ कि आप शशि थरूर के वीडियोस अगर यूट्यूब पे कभी देखे हो या आपके व्हाट्सएप पे आए होंगे, ही यूजेस अ वर्ड फ्लॉक्सिनोसिनिली मिलीपिलिफिकेशन. My God, it's a long word of about 40 letters, 4040. Meaning is very simple. किसी चीज को नहीं बोलना, नाकार देना, कंडेम करना, फालतू है बोलना. The art of treating something as worthless. That is floccinaucinili millipilification.
अब ये वर्ड क्यों बना, किसने बनाया, कैसा बना, लेट्स नॉट गो इनटू दैट, बट दिस इज अ फैंसी वर्ड. शशि थरूर के एक वीडियो में इसने यूज किया है. तो ऐसे भी वर्ड्स होते हैं. देन देयर आर वर्ड्स which we normally use in spoken English. Your emphasis first should be on spoken English rather than writing English, written English. In written English, you have to be formal sometimes. In spoken English, अब नागपुर का सेटअप लेंगे. तुम दोस्तों के साथ आप बात करते हैं तो कैसी बात करते हैं? फ्रेंडली टर्म्स, इनफॉर्मल टर्म्स. यू डोंट नमस्कार, काय मित्रा कसा है, यू डोंट टॉक लाइक दिस. अबे कुठे गेला होता बे, दिस नागपुरी टोन, नागपुरी. ये जो दिस इज colloquialism. This is called colloquial or informal English. There is a tone, there is a, उसमें उसको ढंग कहते हैं, लहजा कहते हैं, तो वो उसमें आता है. Informal English, colloquial English, formal English. This is informal English. Then there is something called slang. Slang भी informal होता है, लेकिन slang को यानी अभी I'm wearing specs. In my school, I was used to be called dhakkan. I mean, these are specs, chashma, spectacles, glasses. अब ये जो ढक्कन वर्ड है for a person wearing specs, ये नागपुर का वर्ड है. This is slang. तो ये स्लैंग फ्रेंडली स्लैंग्स भी होते हैं, कभी अनफ्रेंडली स्लैंग्स भी होते हैं. किसी को कंडेम करना है, किसी को गाली देना है, किसी का इंसल्ट करना है, तो उसके लिए भी स्लैंग वर्ड्स है. एंड द लास्ट थिंग इज ऑर्नामेंटल वर्ड्स. ऑर्नामेंटल वर्ड्स आर फॉर्मल, जो राइटिंग में अपन यूज करते हैं. अच्छे वर्ड्स होते हैं ऑर्नामेंटल. वो लिखने से, वो आपके टेक्स्ट में आने से ऐसा लगता है कि आप वाकई पढ़े लिखे हैं, आप यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. देन द नेक्स्ट थिंग इज, कोई वर्ड यानी बहुत से वर्ड को सिनोनिम्स होते हैं, समानार्थी शब्द, एक ही मीनिंग के अलग अलग वर्ड्स लैंग्वेज में होते हैं, तो वो भी आपको आने चाहिए. और वो कैसे आते हैं? तो उसके लिए पहले आपको इडियोमैटिक इंग्लिश क्या होता है ये पता होना चाहिए. इडियोमैटिक इंग्लिश इज इडियम्स, फ्रेजेस जो होते हैं, कहावतें, मुहावरे, मड़ी, वाक्प्रचार. ऐसा होता है कि आप समझो, आप इंग्लैंड या अमेरिका में गए पहली बार और आप टेक्स्ट बुक से इंग्लिश पढ़ के जाते हैं और बात करते हैं, तो वो समझ जाता है आपको क्या बोलना है, बोल रहे हैं, लेकिन वो ये भी जान जाता है कि यू आर न्यू टू इंग्लिश और योर इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग. तो इडियम्स, फ्रेजेस, मुहावरे, ये अगर आप लैंग्वेज में यूज करते हैं, तो दैट शोज दैट यू आर फेमिलियर विद द वे इंग्लिश इज स्पोकन in by the natives in English speaking countries. India is not an English speaking. I think there is some disturbance. Sir will join us quickly. Do not leave the group, students. Yes, sir, please continue.
इफ आई से आई एम टिकल्ड पिंक, तो किसी ने मुझको गुदगुली नहीं की है या मुझको पिंक कलर नहीं लगा, आई एम टिकल्ड पिंक मीन्स आई एम वेरी हैप्पी, मुझको बहुत मजा आ रही है। सो दिस इज एन इडियम। तो ये इडियोमेटिक इंग्लिश हो गया। अब मुझको बहुत भूख लगी है, तो मैं मेरे, आप छोटे रहते हैं आप मम्मी को बोलते हैं, मदर को बोलते हैं मुझको बहुत भूख लगी है। आप ये नहीं कहते माझ्या मला अतिशय क्षुधा लागलेली आहे। ये स्टिल्टेड इंग्लिश हो गया, ऐसा नहीं बोलते। आप बोलते मला भूख लगली है। इडियोमैटिक आपको बोलना है तो आप क्या बोलोगे, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, या माझ्या पोटात कावळे रडतायत मराठीत म्हणतात। दिस इज कलोक्वियल इडियोमैटिक इंग्लिश। तो ये भी आपको एक्वायर करना है, ये स्किल। तो ये सब कैसा आएगा? अब नाउ वी गो टू this that question, that part of the thing कि ये कैसा एक्वायर करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज टू रीड वोरॅशियसली। वोरॅशियसली यानी आधाशीपणे, खादाडासारखं। जो दिखेगा उसको पढ़िए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप आपको जो पसंद है वो पढ़िए। आपको क्रिकेट पसंद है, आप क्रिकेट का मैगजीन पढ़िए, स्पोर्ट्स मैगजीन पढ़िए। आपको फिल्म मैगजीन पढ़िए, किताब पढ़िए, कादंबरी पढ़िए, नॉवेल पढ़िए, पढ़िए जरूर। द मोर यू रीड द मोर यू लर्न वर्ड्स। अब दूसरा काम इसके साथ 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 में आपको करना है, यू हैव टू कीप अ पेन एंड अ नोटबुक रेडी। डोंट रिलाई ऑन योर सेल फोन, डोंट रिलाई ऑन गूगल कि ये तो मुझको गूगल बताएगा। नो, ये खुद को आपको करना है। आपको जो वर्ड नहीं आता, कुछ वर्ड नए होते, यू आर नॉट फेमिलियर विद दैट वर्ड, राइट इट डाउन। देन you open your constant companion. You need to have two constant companions. आपके दो friends आपको हमेशा अपने जेब में रखना है, नियर बाय रखना है। One is dictionary, the other is a book called thesaurus. डिक्शनरी तो आप सबको मालूम है। thesaurus भी काइंड ऑफ डिक्शनरी है। उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द का कंपाइलेशन किया रहता है। आप उनको ओपन करिए। डिक्शनरी की भी लेवल्स होती है, पहले जो लेवल मैंने बताई, तो हर लेवल के मुताबिक डिक्शनरी मिलती है। द बेस्ट इन माय ओपिनियन फॉर अस, वी स्टडी ब्रिटिश पैटर्न ऑफ इंग्लिश, तो कंसाइज ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। दूसरी, साइमल्टेनियसली आप मराठी है तो इंग्लिश इंटू मराठी या मराठी इंटू इंग्लिश, ये भी पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। लेट इट बी विथ यू। उसमें डिक्शनरी में अलग अलग किस्म से वर्ड्स दिए रहते हैं ना। एक वर्ड की डेफिनेशन सिर्फ देती नहीं, वो वर्ड क्या है, यू नो पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वो क्या, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। अब ये आज के लेक्चर में ये तो मैं कवर नहीं करूंगा, प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट वगैरह, इस पे ये सब चीजों पे मत जाइए, बट दैट विल बी कवर्ड इन सम अदर लेक्चर। आप इंडियन है, आप इंडियन एक्सेंट में बोलिए, आपका जो एक्सेंट है बोलिए, करेक्ट बोलिए, इतना ही इंपॉर्टेंट थिंग है। स्पेल द वर्ड, मेमोराइज इट, 10 बार बोलिए उसको, लिख के देखिए, खुद से ही बात करिए, वो वर्ड बार बार चेक करिए। जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं वर्ड मेरा ये हो, ये भी जरूरत नहीं कि आपको ये वर्ड कभी यूज करना पड़ेगा, बट दैट विल बी स्टोर्ड इन अ मेमोरी। मेमोरी के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज एक्टिव मेमोरी, द अदर इज पैसिव मेमोरी। अगर आपके पास 10,000 वर्ड्स की वोकैबुलरी है, तो 10 के 10,000 वर्ड्स आप रोज यूज करेंगे ऐसा नहीं है, वो पैसिव मेमोरी में चले जाते हैं। उसमें से 100, 200, 300 इतने ही वर्ड्स डेली यूज में आते हैं, दे आर पार्ट ऑफ योर एक्टिव मेमोरी। लेकिन एक वर्ड पढ़ने के बाद में कोई नया, अरे ये तो वर्ड मुझको मालूम है, आई रेड इट समवेयर, तो पैसिव मेमोरी से आपको निकालना है बाहर।
तो उसको बोलते रिकॉल। योर रिकॉल शुड बी इंस्टेंट। वो पढ़ने के बाद में इमीडिएटली आपको समझना चाहिए कि दिस आई हैड गॉन थ्रू दिस वर्ड, आई हैव हर्ड दिस वर्ड, आई हैव रेड दिस वर्ड। तो ये आपके मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है। अब मेमोरी तो हर किसी की सरीकी नहीं होती, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। तो ये मेमोरी को डेवलप करने के स्किल्स अलग है, लेकिन उसके भी कोई छोटे छोटे रूल्स है। उसको मेमोरी को जगाने के लिए, जॉग करने के लिए निमोनिक्स बोलते हैं उसको। निमोनिक्स बोल के एक ट्रिक है। अब जैसे वेरी शॉर्ट एग्जांपल, रेनबो में कितने कलर है? 7 कलर्स। तो उनके जो इनिशियल लेटर्स है उसके हिसाब से वो निमोनिक्स है, ता ना पी ही नी जा। तो ये निमोनिक्स डिवाइस है। या आप ताना पी ही अनिजा ये इतना ही रिमेम्बर किया तो आपको ता फॉर तामड़ा, ना फॉर नारिंगी, पी फॉर पिवड़ा, दिस आर निमोनिक। और ये हर पर्सन अपने अपने निमोनिक्स डिवाइस करता है। अब केमिस्ट्री में आपको एलिमेंट्स की लिस्ट आती है इतनी बड़ी, तो वो उनका पीरियोडिक टेबल में उनका प्लेस कहाँ पे है, उनके नाम क्या है, उसका भी एक निमोनिक्स है, डिवाइस है। तो ये दिस एज आई सेड इन द बिगिनिंग, दिस इज अ पर्सनलाइज्ड एजेंडा। आपको खुद को मेहनत करनी है। सो acquiring a strong vocabulary requires infinite patience. पेशेंस की बात है ये। देन स्ट्रॉन्ग विल पावर, कि मुझको बहुत ज्यादा अच्छी वोकेबुलरी एक्वायर करना है, एंड कॉन्स्टेंट एफर्ट्स। बात करो, यू टॉक टू योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश। गलत बोलो लेकिन बोलो, चैट करो, ऑडियो क्लिप्स देखो, पॉडकास्ट देखो। आजकल तो ये हमारे मैंने ऐसा बोला तो मुझको लोग वो बहुत ज्यादा पुराना एंशिएंट हो, ऐसा नहीं है, लेकिन टिल द 1990s ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी। सो योर जनरेशन इज वेरी लकी, यू हैव यूट्यूब, यू हैव वेरियस अदर वेबसाइट्स एट योर डिस्पोजल। तो आप ऑडियो सुन सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, टीवी पे इंग्लिश सिनेमा तो आप देखते ही होंगे। तो ये सब चीजों से आप अलग 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 स्लोली आपका मेमोरी में वर्ड्स का एक्रीशन होते जाएंगे, बढ़ती होती जाएंगी, बढ़ोतरी होती जाएंगी। The well in your brain will slowly get filled up with water, words water. Language is very beautiful. Every language is beautiful. हर language की अपनी खुशी है, अपनी स्पेशलिटी है, खासियत है। And it's fun to learn language. तो language को आप, it's fun है बोल के उसको देखिए, ट्रीट करिए, उसको दुश्मन मत समझिए। जरूरी नहीं कि आप शशि थरूर जैसे फ्लुएंट स्पीकर एक दिन में बन जाएंगे या बन जाए, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इट्स फन, यू नो। आपको ये सुन के ताज्जुब होगा, यू विल बी सरप्राइज्ड। ईच वर्ड हैज इट्स ओन टेस्ट। जैसा आप खाने में समोसा, कचौरी, व्हाटएवर यू लाइक, उसकी एक टेस्ट होती है, उसका एक फील होता है, उसका एक खुशबू होती है उसकी। हर वर्ड का अपना अपना उसकी ब्यूटी होती है। यू हैव टू अप्रिशिएट वर्ड्स। और आपने केमिस्ट्री में, स्कूल में या कॉलेज में, स्कूल में होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस, सुना होगा। ये ऑस्मोसिस है, काइंड ऑफ ऑस्मोसिस। ये बाहर से ये आपके अंदर आपको एब्सॉर्ब करना है। दैट्स द वे टू लर्न, एक्वायर वोकैबुलरी। एंड जैसे मैंने पहले बताया कि इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है आपके आफ्टर लाइफ में, आफ्टर योर ग्रेजुएशन। आपको पता नहीं आप क्या करेंगे। आप बैंक में क्लार्क बन सकते हैं, या पॉसिबल है आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं। अब पॉलिटिशियन को तो बात करना तो बहुत जरूरी है। ही मस्ट बी एबल टू कन्विंस हिज ऑडियंस
कि उसके जो इरादे हैं वो नेक है, भले बाद में जाके वो मुकर जाए या झूठ बोलता होगा, लेकिन वो जो बोलने का उसका वो जो बोल रहा है तो सामने वाला इंप्रेस होना चाहिए उसके वर्ड से कि नहीं ये अच्छा है, मैंने इसको चुन के देना चाहिए। या किताब पढ़ते हैं, as man told you in the beginning, I'm a voracious reader, a lover of P.G. Wodehouse. P.G. Wodehouse एक लास्ट सेंचुरी का ग्रेटेस्ट ह्यूमरिस्ट था, कॉमिक राइटर था। Why? Because of his language. आपके जो भी कोई पसंदीदा ऑथर हो गए, पीजी वुडहाउस फॉरेनर था, छोड़ दीजिए, इंडियन ऑथर है आपके, क्यों आपको वो अच्छा लगता है? Because of his subject, because of his plot, because of handling the situation, or because of his language. A good author needs to have all these things at his command. आपको लैंग्वेज की कमांड आनी चाहिए। कमांड यानी पकड़। आपने घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग के बारे में सुना होगा, किया भी होगा। A horse rider needs to have a firm command over his horse. आप शर्मा के या घबरा के घोड़े पे बैठते हैं तो घोड़ा इमीडिएटली समझ जाता है कि ये बंदा डरा हुआ है और वो उसको आपको दूर फेंकने की कोशिश करेगा। तो आपको बैठने के बाद में उसको ऐसा आपके जो पैर है उससे पकड़ के रखना है और जो लगाम है उसको ऐसा कस के रखना है कि घोड़ा इमीडिएट समझ जाता है कि नहीं ये बंदा मैं नहीं फेंक सकता, इसको पावरफुल है। So that is command of language. Or language is an evolving thing. It's like a river. It flows, constantly flows, stagnate नहीं होती, एक जगह नहीं रुकती। बेसिक रूल्स जो है वो वही रहेंगे, लेकिन अब बेसिक रूल्स भी 200-300 साल पहले जो थे वो बदल के आज के रूल्स है। पॉसिबल है कि 200-300 साल में और बदल जाएंगे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम। चेंजेस आर इन दी वर्ड्स। कुछ वर्ड्स उनको ऑब्सोलीट बोलते हैं, यानी वो फॉरगेट हम कर देते हैं, उनको यूज नहीं करते। यूज नहीं करने से वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं, विस्मृति में चले जाते हैं, हम भूल जाते हैं उनको। ऐसे भी वर्ड्स होते हैं। कुछ वर्ड्स हम नए बनाते हैं जरूरत के हिसाब से। You have to be able to acquire all these things. और इसके साथ में और एक इम्पोर्टेंट चीज है, मैडम मेरे को आप टाइम होने के बाद बताइए। Yes sir, yes sir, you still have 10 minutes time sir. Okay. Yeah. One more thing I would like to emphasize is grammar. आप साथ साथ में ग्रामर का भी आपका स्टडी होना चाहिए। बहुत ज्यादा ग्रामेरियन की तरफ नहीं, लेकिन ग्रामर का बेसिक आपको मालूम, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, आपको काफी सारे वर्ड्स मैंने बताए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में there are 8 types of words that you know. Of these, ये 8 में से नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब, ये जो 4 टाइप्स है, ये इनको हम यानी इंटरमिंगल कर सकते हैं। नाउन का वर्ब बना सकते हैं, वर्ब का एडजेक्टिव बना सकते हैं, एडजेक्टिव का एडवर्ब बना सकते हैं। और इसके साथ में पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, दैट इज प्रीपोजिशन। अब कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनको फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। तो ये अगर आपका ग्रामर वीक होगा, कच्चा होगा, तो आपको ये फ्रेजल वर्ब्स कैसे यूज करना ये आपको नहीं समझेगा। अब फ्रेजल वर्ब्स कैसा होता है कि एक वर्ब और उसको अटैच किया हुआ एक प्रीपोजिशन, एट, इन, ऑन, अपॉन, बिलो, बीनीथ, अंडर, ऑन, ये सब प्रीपोजिशंस है। अब एक सिंपल वर्ड लीजिए, लुक, ये वर्ब है। टू लुक, देखना। लुक, सिर्फ मैंने लुक बोला तो वो प्रेजेंट टेंस का वर्ब हो गया। अब इसको प्रीपोजिशन जोड़ा तो हम अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं।
लुक एट मी, स्क्रीन पे आप मेरी तरफ देखिए, लुक एट मी, मेरी तरफ देखिए। अब लुक अप यानी ऊपर। अब लुकअप का दूसरा भी मतलब होता है, मुझको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो आई लुक इट अप इन द डिक्शनरी, मैं डिक्शनरी में उसको देखूंगा, लुक इट अप। किसी को आपको नीचा दिखाना है, कंडेम करना है, उसका इंसल्ट करना है, आप घमंडी है, तो आप यू लुक डाउन अपॉन समबडी, लुक डाउन अपॉन, नीचा दिखाना उसको, घमंडी नजरों से देखना। लुक इन, आई लुक इनटू, लुक इनटू। आप किसी दरखास्त करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, यू आर रिक्वेस्टिंग एन ऑफिशियल to solve your problem. What you write in the application is, please look into the matter. Look in झांकना, I just looked in. So this in, into, upon, at, ये सब prepositions है, तो ये verb को जोड़े हुए इसलिए वो phrasal verbs बनते हैं। तो you have to be sure which preposition goes with वो आपका जो मतलब है, वो मतलब के मुताबिक जो मीनिंग है, जो आपको कहना है, बताना है, सुझाना है, उसके मुताबिक वो प्रीपोजिशन चेंज होता जाएगा। सो इफ यू यूज अ रॉन्ग प्रीपोजिशन इट विल नॉट कन्वे योर मीनिंग। तो ये ग्रामर है। वर्ड बनाने के जो आपके तरीके हैं आप खुद ही बना सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया, रीड करो, प्रैक्टिस करो, कॉन्स्टेंटली रिवाइज करो, आपको खुद को रिव्यू करो, फिर वर्ड में से कोई भी वर्ड लीजिए। ब्यूटी, ब्यूटी से कितने वर्ड बनते हैं? ब्यूटीफुल, उसका वर्ब बनाना है तो ब्यूटीफाई, एडवर्ब बनाना है तो ब्यूटीफुली। तो ये आप खुद ही उसको ऐसे वर्ड्स बना सकते हैं। एंड व्हेन यू आर श्योर दैट योर वोकैबुलरी इज up to the mark of the goal you have set for yourself, वही टाइम पे आपको उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन भी आना चाहिए, उसका स्पेलिंग के तरफ भी आपको ख्याल देना है। व्हेन यू राइट यू शुड नेवर बी रॉन्ग। अब तो ऑटो करेक्ट और ये ऑटो स्पेलिंग सब फोन और कंप्यूटर पे आ गए, बट वी शुड नॉट रियली डिपेंड ऑन दिस आर्टिफिशियल थिंग्स। और सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है, जो ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन गूगल करता है, वो तो मोस्ट अनरिलायबल थिंग। डोंट यू, आपको खुद को उसको ट्रांसलेट करते आना चाहिए। वर्ड्स हैव मल्टीपल मीनिंग्स, एक ही वर्ड के अलग अलग मतलब होते हैं, तो कौन सा वर्ड कब यूज करना, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना, ये भी आपको आना चाहिए। ये सब आपको कब आएगा? जब आपका रीडिंग अच्छा होगा। और दूसरा एक जो मैं हमेशा डिस्क्राइब करता हूँ, या मैं खुद भी वो तरीके से, एक स्क्रैबल बोल के एक गेम आता है, वर्ड गेम। स्क्रैबल में आपको, बेसिकली इट्स एन अमेरिकन गेम अवेलेबल ऑन अमेज़न एवरीवेयर। आपको वर्ड्स यूज करना है, वर्ड्स बनाना है लेटर्स से। बहुत ब्रेन को टीज करने वाला गेम, ब्रेन टीजर, बहुत चैलेंजिंग गेम रहता है वो। आप स्क्रैबल खेलिए। एंड सेकंड थिंग इज सॉल्व क्रॉसवर्ड्स। हर न्यूज़पेपर में या मैगजीन में मराठी, हिंदी, इंग्लिश क्रॉसवर्ड आते हैं, उसकी भी लेवल्स होती है। कोई बहुत सिंपल होते हैं ऑर्डिनरी वर्ड्स, और कुछ डिफिकल्ट होते हैं, उनको क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड बोलते हैं। तो आप क्रॉसवर्ड सॉल्व करते जाइए। बहुत इनिशियली आपको क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड करने में दिक्कत जाएंगे, यू हैव टू हैव प्रैक्टिस। पुरानी आंसर्स, दूसरे दिन आंसर्स आते हैं तो चेक करते जाए, तो यू विल नो हाउ दैट क्रॉसवर्ड हैज बीन कंपाइल्ड। सो आई विल टेल यू अनदर वर्ड which you can write it down for your memory. Cruciverbalist, CRUCIVERBALIST.
CRASLIST, क्रूसी वर्बालिस्ट, जो क्रॉसवर्ड में कीन इंटरेस्ट लेता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है या कंपाइल करता है, ऐसे आदमी को या औरत को क्रूसी वर्बालिस्ट बोला जाता है, ऐसे पर्सन को. तो दिस इज अनदर वर्ड फॉर यू. एंड देन idiomatic English का, I think I'll conclude my discussion or speech by giving you a familiar example जो आपको पसंद, शायद पसंद आए. शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने धमाल बोल के एक फिल्म थी, हिंदी फिल्म 10-15 साल पहले आई थी, संजय दत्त की, संजय दत्त एंड रितेश देशमुख आई थी, याद है? उसमें एक सीन है, आई ऑलवेज, ये बताने का कारण भी बताता हूँ कि उसमें एक इंग्लिश इडियम का एक बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्टर ने यूज किया है. वो कितने लोगों के समझ में आया वो तो मैं नहीं बता सकता, बट आपने खुद ने वो नोटिस किया है कि एक सिनेमा शुरू होने के बाद में, आई थिंक 25-30 मिनट के बाद में, 30-35 मिनट के बाद में एक सीन है, वो प्रेम चोपड़ा की कार को एक्सीडेंट होता है और ये 2-3 लोग पुलिस से भाग के, 4 बंदे हैं, वो वहां पे दे रीच द स्पॉट एंड दे सी दिस एक्सीडेंट एंड दे गो टू हेल्प द पर्सन. So the injured person tells them some secret about the hidden money and then he dies. इंजोर, बहुत ज्यादा इंजोर हुआ रहता. तो when he dies, वहां पे एक प्लास्टिक की बकेट रखी रहती है, बाल्टी. He kicks that bucket and that bucket falls down, is thrown away. अब ये जो पर्टिकुलर शॉट है, इसमें बहुत ज्यादा ब्यूटी है. इंग्लिश में किसी ने अपना दम तोड़ना, मर जाना, उसको किक द बकेट, ऐसा इडियोमैटिक इंग्लिश में कहते हैं, कि किक द बकेट. वो जो डायरेक्टर है, वो बंदे के, मुझको आई रियली अप्रिशिएट हिज डायरेक्टोरियल स्किल्स. उसने वो एक छोटे से शॉट में ये जो इंग्लिश इडियम है उसका इतना खूबसूरती से इस्तेमाल किया है कि वाई, आपको कभी से वो सिनेमा देखते हुए लगा ऐसा, ये सीन देखते हुए, कि क्यों ये बंदा वो बकेट को लात मार रहा है? व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन दैट बकेट एंड हिज डाइंग? दैट कनेक्शन इज इन दिस फ्रेज, टू किक द बकेट. मर गया. So you know, this is how we learn. This is how we then develop the skill to use. अब जब बताया कि आप अगर सिनेमा लाइन में जाते हैं, आप स्क्रीन प्ले लिखते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपके काम में आएंगी. अगर आप क्रिकेट की कमेंट्री करते हैं तो यू कैन यूज ब्यूटीफुल वर्ड्स. अगर आप पोएम्स या ड्रामा लिखते हैं, अगर आप नॉवेल लिखते हैं, अगर आप रिसर्च पेपर भी लिखते हैं, अगर आप फिलोसॉफिकल किताब लिखते हैं. बर्ट्रैंड रसेल एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उनकी इंग्लिश देखिए, ब्यूटीफुल इंग्लिश. ऐसा लगता है कि आप कोई कविता पढ़ रहे हैं. सुंदर इंग्लिश. फिलोसॉफी जैसा डिफिकल्ट सब्जेक्ट इतने अच्छे वर्ड्स में, जो मतलब भी कन्वे करता है, आपको इम्प्रेस भी करता है. So to conclude, you need to have fluency, you need to be accurate, आपका रेंज ऑफ वर्ड्स बहुत ज्यादा होना चाहिए. आप टॉपिकली स्टडी करें ना, मैं जो पहले शुरू में बताया आपको, एक गोल सेट करिए, मुझको इतना यहां तक जाना है, फिर वहां पे जाने के बाद फिर आगे जाइए. पहले Sir, please unmute yourself, sir. Yes, sir. You're back. Then पहले बोलने की कोशिश करिए, स्पोकन इंग्लिश फर्स्ट. अनफेमिलियर वर्ड्स को फैमिलियराइज करिए. एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बी अ वर्ड एडिक्ट. आप
अलग अलग किस्म के आगे चल के जिंदगी में आप देखेंगे एडिक्ट लोग होते हैं कि, तो आपको एडिक्ट बनना है किसका? लैंग्वेज का, वर्ड्स का। और सबसे आखिरी में आप आपको यूट्यूब पे ये वीडियो दिखेंगे, स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट। ये अमेरिका में होता है और 10-15 साल, 5 साल से 10-15 साल तक के बच्चों के कॉन्टेस्ट होते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। उनको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट और अनफेमिलियर वर्ड होते हैं, उनको मालूम नहीं रहता है। कुछ क्लूज दिए जाते हैं उनको और वो हिसाब से उनको स्पेल करना है वर्ड को। तो वो उसमें आप देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड दैट in the last so many years the winner has been a person, a student, a boy or girl of Indian origin, जिसके पेरेंट्स वहां पे जाके सेटल हुए, ग्रैंड पेरेंट्स वहां पे जाके सेटल हुए। ऐसे भारतीय वंश के बच्चे, इंडियन ओरिजिन के बच्चे, वो पहले आते हैं। दिस हैज बीन गोइंग ऑन सिंस लास्ट 20 years। उनको भी सरप्राइज होता है कि बच्चों को इतना कैसा आता है। How can a 5-year boy, a 10-year boy can spell words? No, because वो सिर्फ वो कोई कंप्यूटर थोड़ी है। They love words। वो साउंड से पता करते हैं, वर्ड बताते हैं, उसका मीनिंग बताते हैं, वो उसका ओरिजिन बताते हैं कि वर्ड जर्मन है या ग्रीक है या फ्रेंच है या लैटिन है, और उसका मीनिंग क्या है, उसका कोई सिनोनिम है क्या। ऐसे 2-3 क्लू भी उनको दिए जाते हैं अगर पहली एफर्ट में नहीं आया, एंड देन दे स्पेल इट। तो आप जरूर देखें यूट्यूब पे स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट के वीडियो। तो वैसा स्पेलिंग से वर्ड बनाना, साउंड से वर्ड बनाना, ये भी एक आर्ट है। तो ये आपको अपने ही इंडियन जो चिल्ड्रन है, अपने ही देश के लोग हैं, तो उनसे आप सीख सकते हैं। I think that's all. Madam? Yes, sir. I'm here. तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम है, पूछ सकते हैं। Right. Yes, yes, yes. Students, if you wish, you can ask sir any question. Till then, I would like to share my experience, sir. I am reminded, because you were talking about words and all, it reminded me of the time when I was doing my post graduation, and I did it from campus, PGTD campus, Nagpur University. So we used to have Dr. R.N. Roy sir, great literature and a great teacher also, and he used to teach us history of English language. So there is a topic, or a part used to be there where semasiology was his favorite domain, and he used to tell us about the various processes when a meaning of the word changes. According to, in some eras the meaning is a particular, in a particular way it is there, and in the next era maybe because of the usage, because how people use it, the meaning goes on changing. So there were certain processes like regeneration of words or degeneration of words or restriction of meaning. So I'm reminded of all these things now when you were talking about it. And it is a wonderful part. I mean, language acquisition is a skill. And as you rightly said, that it is an ongoing process. It never ends. I mean, it's not like I have finished my examination and this is over. Like the studies are over. Till we are alive, I think we are going to go on acquiring newer, jargons, even jargons, because even I belong to that age when jargons were not very much used in languages. But now, if you see in the technical world also, there are certain stereotyped words which we are using, and it has come so naturally to us that I think this is the beauty of language again. That right. Accept Absolutely. newer things, it's not that we know everything and we have closed it down. So it is a dynamic process. Dynamic process, yes. Right, absolutely.
I'm very happy, sir. You have, I mean, whatever was there in my mind, you have actually delivered the same things to my students. And I'm hopeful this video is going to reach larger audience, because this will be there on YouTube platform of my college. So naturally, That's more, wonderful. yes, the more number of viewers, not now, maybe in an asynchronous type, because that is our agenda, that we want to reach larger people, not only of our college, but the rest of the colleges also. So young students can understand the various ways with which they can go about acquiring language, and the importance of language. Why is it necessary for me to do a particular thing? Because I think if something is not necessary, people will not do it. So they have to first understand the importance of something. I'm very thankful to you, sir, from my side. And to propose a formal vote of thanks, one of the students enrolled over here is Anita Tekam, and she has volunteered to propose a vote of thanks. So I request Anita, yes, please. I mean, this is one of the things which I love, because students are really getting trained. You know, they are also coming on the platform. So I would request Anita to unmute herself, and she can start a video also and propose a vote of thanks. Yes, Anita. Good morning, sir and ma'am. My name is Anita Kamalji Tekam. I am a student of Sri Vinjani City College, pursuing BA final year. Nimkhedkar sir, it was quite liberating to listen to you talk about the strength of a good vocabulary, as we all know that a person who knows how to lead good conversation can shine through this era of competition to become the top of their respectful field. As you have highlighted that vocabulary is not only related to the speaking skills, people who are a bit introverted can actually write down on paper whatever that is going on their mind, which can boost their confidence. Thank you so much, sir, for giving us your valuable time, and the knowledge that you have given us is going to be very helpful in the future. I'm sure of it. Once again, thank you very much. Okay, my pleasure. It was my pleasure, really. Wonderful, Anita. I'm very happy you have taken this step. Sir, I would like to share with you, she is a very quiet student that way in my class, but today she has really presented it well. I'm happy. Thank you, Arish ma'am. Thank you. Thank you so much, Anita. Thank you so much, Nimkhedkar sir. And I hope that we meet again on some or the other platform. So, Right. yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. I am ending the meeting now, students. You go to the Google Classroom. Thank you. Good day to you. Good day to all. Yes, Bye. sir.